ta ta thiên cơ thiên ta 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 thiên cơ ta thiên ta 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 thiên thiên ta ta Uttar Pradesh welcomes delegates to an experience like no other. G20 Vasudhaiva Kutumbakam. One Earth, one family, one future. Vasudhaiva Kutumbakam. Hi everybody. If it drains you, it's not for you. Always remember that. Today is 12th, 13th February 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, writing. Writing is very, very important. The patient, slow burn of writing ignites creativity. And you can hide in your shell, or you can stick your neck out and progress. Push your boundaries beyond the ordinary. Be that extra in extraordinary. This is टेस्ट सीरीज 2023 कोर्स वन स्टॉप सॉल्यूशन है. इसमें हम ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, चाहे GS1 या GS2, वी आर गोइंग टू कवर ऑल द थिंग्स. देन दिस इज सिलेबस सेक्शन प्रीलिम्स 2023 और इसका सेकेंड राउंड अभी स्टार्ट होने वाला है. उसमें करंट अफेयर्स हम लास्ट 2-3 ईयर्स का अच्छे से रिवाइज करेंगे. This is daily MCQ Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. Then this is vocabulary. Shimmered. Shimmered का मतलब होता है टिमटिमाना. Shine with a soft tremulous light. Unabashed है. Unabashed मतलब है not embarrassed, disconcerted or ashamed. Confabulate means होता है बातचीत करना. To exchange viewpoints or seek advice for the purpose of finding a solution to a problem. Confabulate. Staple. Staple मतलब प्रमुख है. The main or greater part of something or distinguished from its subordinate parts. Arsenal. Arsenal का मतलब होता है शस्त्रागार. A place where military arms are stored. So आज के vocab words हैं arsenal, staple, confabulate, unabashed and shimmered. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. This is exam fact series number 14. Supreme Court of India was created by the Constitution of India. Concept of judicial review has been borrowed from the Constitution of United States of America. The seat of the Supreme Court is New Delhi. अब बताओ क्या ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की सीट न्यू दिल्ली ही होगी? Can a retired judge be asked to sit in the Supreme Court? Yes. The organ of the state which makes law is called legislature. So legislature, executive और जुडिशरी, इन तीनों के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए. ऐसा किस थिंकर ने कहा है? और क्या ऐसा कुछ DPSP में कोई आर्टिकल भी है इस टाइप का? The organ of the state implement and execute laws is known as executive. Natural justice का मतलब होता है just, fair and reasonable action. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो कॉम है वो रेस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में भी लोकसभा इन पर्टिकुलर. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंटीग्रल पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के. All the executive functions and defense forces of the union shall be vested in the president. तो आप बताओ डी फैक्टो लीडर कौन होता है और डी जूर लीडर कौन होता है दिस यूनियन ऑफ इंडिया का? डी फैक्टो एंड डी जूर. नाउ दिस इज CSAT. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर इसका सही जवाब क्या होगा. Similarly, this is question number 2. Read this question carefully and answer what is the right option.
देन दिस इज राइटिंग प्रैक्टिस। सी, आज का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको अटेम्प्ट करना है। प्रिपेयर अ नोट ऑन द रिवर्स ऑफ इंडिया। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 आप उठाइए और रिवर्स ऑफ इंडिया कितनी टाइप की है, कौन सी रिवर है, चाहे वो हिमालयन हो या फिर पेनिनसुलर हो, बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी की हो, एंटीसीडेंट रिवर है या फिर वो पेरेनियल रिवर है या फिर एफेमरल रिवर है। राइट डाउन ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया। जितनी भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, रिवर्स का क्लासिफिकेशन भी होता है कि उनका 20,000 से बिगर बेसिन है या फिर 2,000 टू 20,000 है, लाइक दैट। आप जितनी भी रिवर्स हैं इंडिया की उनको अच्छे से आप ड्रॉ करिए। आप इसको टैबुलेट भी कर सकते हैं, आप इसको मैप भी बना सकते हैं, उसमें रिवर जो वाटर डिवाइड है वो भी मेंशन करिए, वाटर डिवाइड भी। सो इट इज अप टू यू। जस्ट प्रिपेयर अ वेरी गुड नोट ऑन रिवर्स ऑफ इंडिया और यूपीएससी प्रीलिम्स 28 ऑफ मे को आपके 4 नंबर पक्के हैं। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन थॉरोली। देन दिस इज सोशल मीडिया अपडेट। आज हम जानते हैं सरोजनी नायडू जी के बारे में। आपको जाना जाता है नाइटेंगल ऑफ इंडिया, प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर, ओरेटर और पोएट रही हैं आप। फर्स्ट वुमेन है जो गवर्नर बनी थी यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश की। और आपकी फर्स्ट बुक ऑफ पोएम्स है जिसका नाम है गोल्डन थ्रेशोल्ड। तो 13 फरवरी टू 2 मार्च 1949। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, पॉलिटिशियन एंड पोएट ऑन हर बर्थ एनिवर्सरी, फर्स्ट वुमन टू बिकम द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट। और आप हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी, रिवॉल्यूशनरी सोशल रिफॉर्मर्स हैं और बर्थ एनिवर्सरी है। आपने स्ट्रांगली रेजिस्ट किया था सोशल इल्स को, आउटडेटेड रिलीजियस प्रैक्टिसेस को। आपकी टीचिंग्स ने इन्फ्लुएंस किया, इंस्पायर किया बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को। तो रिमेंबरिंग रिवॉल्यूशनरी सोशल रिफॉर्मर्स ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी, स्ट्रांगली रेजिस्टेड सोशल इविल्स। देन आप हैं वीर बुद्धू भगत, फर्स्ट ट्राइबल tribute to first revolutionary to be martyred in the fight for freedom against British. He taught tribals to fight for their rights. जो tribals थे उनके rights का हनन हो रहा था, exploitation था। तो वीर बुद्धू भगत जी जैसे ट्राइबल लीडर्स ने उसको रेजिस्ट किया। ट्रिब्यूट टू फ्रीडम फाइटर एंड लीडर फॉर द कोल रिबेलियन ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी। He taught tribals to fight against injustice. So this is social media update. अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। आज हम कवर करेंगे संडे द हिंदू और आज का मंडे द हिंदू, दोनों दिल्ली एडिशन है। पहले हम संडे से शुरुआत करते हैं। ट्रेसिंग द ओरिजिन ऑफ दिस अगस्त्यार ऑब्जर्वेटरी। तो ये एक ऑब्जर्वेटरी है, इसके रूट्स आज हम जानेंगे। आर्काइवल रिकॉर्ड्स क्या बोलते हैं, 19th सेंचुरी में ये ऑब्जर्वेटरी बनी थी, वी विल सी। देन व्हाई वर टर्कीज अर्थक्वेक सो डिवास्टेटिंग। नाउ सी, ये बड़ा अच्छा एक्सप्लेन सेक्शन आया है और इसमें टर्की के अर्थक्वेक के बारे में सारी चीजें बताए। नो सी, दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द वे न्यूज़पेपर शुड बी रेड। सी, न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे आता है, न्यूज़पेपर डेली बेसिस में आता है, तो हमें इसे स्टैंड अलोन वीडियो की तरह नहीं देखना चाहिए। हम अगर कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रखेंगे ना कि हम डेली बेसिस पे न्यूज़ देख रहे हैं, आप देखना आपका कोई भी न्यूज़ स्किप नहीं होगा। ऑल द न्यूज़, ऑल द करंट अफेयर्स न्यूज़ जो रेलेवेंट टू एग्जाम सिलेबस है वो सारा कंप्लीट होगा। एंड वी ट्राई टू मेक दिस डेली ब्रीफ वीडियो इन सच अ वे कि आप डेली अराउंड 40-45 मिनट्स का टाइम निकालिए, वॉच दिस वीडियो रेगुलरली एंड यू विल फाइंड यू विल सी कि हमने एग्जाम का सारा एस्पेक्ट्स इसमें कवर कर दिया है। चाहे वो GS1 हो, CSET हो, आंसर राइटिंग हो, द हिंदू न्यूज़पेपर हो, एवरीथिंग। सो दिस इज एन एफिशिएंट वे बिकॉज वी आर डीलिंग इन द करेंसी ऑफ टाइम and this exam is not about like spoon feeding as well. So use this daily brief video in such a way कि एक continuity बना हुआ है और हम सारा न्यूज़ यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अब जैसे ये टर्की का अर्थक्वेक आया, मैंने आपको बोला था लेट अस वेट फॉर सम टाइम, इसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनर हम देखने वाले हैं और ये आज हम देखेंगे। ओके, देन दिस इज थ्योरी ऑफ कॉन्शियंस। अब सी, यहां बात है द कट्स रन डीप। अब देखो न्यूज़पेपर भी होता है ना, तो हमें एज इट इज न्यूज़पेपर के ट्रेंड को भी नहीं फॉलो करना है, इसको हमें सिलेबस के विद इन रख के बात करनी है। प्लस वी आर नॉट अ न्यूज़ मीडिया कि हम ब्रेकिंग न्यूज़ बना रहे हैं, आज इवेंट हुआ एंड वी आर क्विकली ट्राइंग टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन। मैनी अ टाइम्स वो हाफ बेक्ड होती है, ट्रुथ भी नहीं होती है, मैनी अ टाइम्स एरर के भी चांसेस होता है। सो इट इज नॉट लाइक कि करंट अफेयर्स मतलब हम बॉल बाय बॉल कमेंट्री करें। वेट, पेशेंस। अब जैसे ये है, अब इस टाइप से भी जो न्यूज़ आ रही है, तो अवर ऑब्जेक्टिव शुड बी कि हम इंस्टीट्यूशंस के बारे में जाने, हम जाने इसमें एथिकल एंगल क्या आ रहा है, मोरालिटी क्या आ रही है, इंस्टीट्यूशन की वर्किंग कैसे होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या प्रोविजन है, फंडामेंटल राइट्स का क्या प्रोविजन है, लाइक दैट। सो दिस इज द कट्स रन डीप।
From geopolitics and religion to the police, the Central Board of Film Certification, अब ये इंस्टीट्यूट पता होना चाहिए, Central Board of Film Certification, ambit has grown beyond traditional concerns. तो यहाँ पे बताया गया है कि एक्चुअली मूवीज आती है तो उनको पहले एक बार सेंसर बोर्ड से अप्रूवल लेना पड़ता है। सेंसर बोर्ड उन्हें सर्टिफिकेट देता है कि ये यूनिवर्सल है या फिर एडल्ट मूवी है या फिर से 14+ है, लाइक दैट। तो ये सर्टिफिकेशन जरूरी होता है बिफोर रिलीजिंग मूवीज टू द थिएटर्स। अब कई बार मूवीज में हम देखते हैं कि एंटरटेनमेंट के नाम पर वेरियस अदर एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे वायलेंस है, सेक्सुअल कंटेंट है, अब्यूजिव लैंग्वेज है, तो सेंसर बोर्ड उसको कट लगाता है। There have been over 1000 cuts, revisions demanded in 300 movies cleared for screening in cinema halls over the past 3 months or so. तो पास्ट कंसर्न्स हैं जैसे वायलेंस, सेक्सुअल कंटेंट, अब्यूजिव लैंग्वेज, तो इसमें सेंसर बोर्ड एक कट लगाता है। कई बार ऐसे उसमें कलर्ड होता है मूवीज में, या फिर एक नैरेटिव प्रोपोगेट किया जाता है जो इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट है, फ्रेंडली रिलेशंस जो फॉरेन स्टेट्स के साथ हैं उसके अगेंस्ट है, या फिर उसमें गवर्नमेंट का मेंशन किया है, प्राइम मिनिस्टर्स एटसेट्रा, और रेफरेंस टू द पॉइंट इज कि अगर ऐसा कंटेंट आता है तो सेंसर बोर्ड वहां पर भी ऑब्जेक्शन लेता है। फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्रिब्यूनल अबॉलिश हो गया था 2021 में। तो अभी एक ट्राइब्यूनल था जो सारा मैटर देखता था, दिस जो भी डिसीजन आया है दिस सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन का, बट अब सारी अपील अब इस ट्राइब्यूनल में नहीं, हाई कोर्ट में होगी। तो दिस इज अबाउट कि द कट्स रन डीप, CBFC और फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्राइब्यूनल अब स्क्वाश हो गया है। देन सेंटर ड्राफ्टिंग रिप्लाई टू सुप्रीम कोर्ट कंसर्न्स ऑन अदानी स्टॉक। देन दिस इज नेक्स्ट न्यूज, नेट डायरेक्ट टैक्स का किटी बढ़ा है 18%। आप बताओ देश में डायरेक्ट टैक्स का परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए या इनडायरेक्ट टैक्स का परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए? डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें से परसेंटेज किसका ज्यादा होना चाहिए और आज की डेट में क्या स्टेटस है? अभी पढ़ा था ना इकोनॉमिक सर्वे ब्रीफ में भी और बजट सर्वे में भी दिया था, बजट स्पीच में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो बताइए दोनों में से क्या ज्यादा होना चाहिए? तो यहाँ पे नेट डायरेक्ट टैक्स का किटी दिया हुआ है। देन दिस इज पेज नंबर 2 और डेलाइट wake up to another warm day. Customers don't prefer them. Millets get the cold shoulder at G20 Food Fest. मिलेट्स एक्चुअली क्या होता है, एट टाइम्स हमारा टेस्ट डेवलप हो गया है व्हीट के लिए, तो मिलेट्स जो मोटा अनाज होता है इसको एट टाइम्स हम उतना पसंद नहीं कर पा रहे हैं, जो ऐसा होना नहीं चाहिए। मिलेट्स इज अ सुपर फूड, वी शुड ईट मिलेट्स, मिलेट्स आर रियली गुड। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स है और इसका फूड स्टॉल भी लगा है, तो अभी यहाँ पे इतने टेकर्स नहीं है, बट वी नीड टू एनकरेज दिस कल्चर और टेस्ट डेवलप करना है मिलेट्स में, बिकॉज मिलेट्स आर वेरी हेल्दी। तो G20 कंट्री चाइना, टर्की, जापान, मैक्सिको एंड 14 इंडियन एंड यूनियन टेरिटोरीज इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फूड फेस्टिवल ये दिल्ली में चल रहा है और मिलेट्स को यहाँ पर बढ़ाने का, एनकरेज करने का कोशिश किया जा रहा है, बिकॉज दिस इज हेल्थ कॉन्शियस, हेल्दी फूड है मिलेट। Then this is Delhi education. Visitors review lack of facilities at 299-year-old जंतर मंतर। तो ये जंतर मंतर है, जंतर मंतर का जैसे ये सन डायल है। एक्चुअली दीज आर एस्ट्रोनॉमी के यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एस्ट्रोनॉमी, और आप बहुत सारे इसमें एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, जैसे ये सन डायल है, ये जंतर मंतर है। तो वैसे तो जंतर मंतर आजकल प्रोटेस्ट के लिए ज्यादा पॉपुलर हो गया है, बट द पॉइंट इज कि जंतर मंतर की जो एस्ट्रोनॉमिकल सिग्निफिकेंस है वो भी इग्नोर नहीं होनी चाहिए। जंतर मंतर वन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेटरीज है जो महाराजा जय सिंह II जयपुर ने 1724 में बनाई थी। ये ऑब्जर्वेटरी बिल्ट हुआ था आफ्टर मुगल एम्परर मोहम्मद शाह अलॉटेड द टास्क ऑफ री एग्जामिनिंग द कैलेंडर एंड एस्ट्रोनॉमिकल रिकॉर्ड्स। ऐसे 5 जंतर मंतर हैं जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी में। जयपुर का जो जंतर मंतर है वो बिगेस्ट है, ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी सवाई राजा प्रताप सिंह ने ही बाद में हवा महल भी बनाया था, और अकबर ने बिल्ड किया था बुलंद दरवाजा, ओके, एंड शाहजहां ने बिल्ड किया था ताजमहल एंड रेड फोर्ट। तो दिल्ली का अगर आपको एक्सेस है तो आप इन सारी चीजों को भी देखो, जंतर मंतर, रेड फोर्ट, कुतुब कॉम्प्लेक्स एटसेट्रा। Then this is peek into the past of Agasatya Karkudam Lost Observatory. तो ये एक लॉस्ट ऑब्जर्वेटरी का मेमोयर में भी मेंशन था ट्रावनकोर वेस्टर्न घाट्स में, और इसके बारे में फिर से अभी डिगिंग की जा रही है ओरिजिन ऑफ दिस ऑब्जर्वेटरी को फाइंड करने के लिए।
तेलंगाना का सेक्रेटेरिएट अभी इनॉग्रेट नहीं हुआ है, Feb 17. Now see the way we are covering newspaper, we are covering at least 40 to 50 news in every single brief. This is a really good thing. रेंज कवर होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि गिनती के 4 टॉपिक्स हैं हम उसको पूरा डेप्थ में पढ़ लिया। व्हाट इज दैट यूटिलिटी की अगर हम उसमें रेंज नहीं कवर करें, और टॉपिक्स भी ऐसे होते हैं वो रिपीट होते हैं। सो द पॉइंट इज वी शुड स्टडी लाइक वेव व्हेन इट कम्स टू न्यूज़पेपर। वेव टाइप हम सारी स्टडी करें और ग्रेजुअली कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होते जा रहे हैं, उसको फॉलो करते जाए। दिस इज अ वेरी एफिशिएंट एंड लाइक रियली गुड टेक्निक। ओके, पेंटिंग द स्काई। अब देखिए स्पेक्टेकुलर शो है, इंडियन एयरफोर्स का एरोबैटिक टीम है, सूर्य किरण है इसका नाम। ये अभी दिस एयरफोर्स बेस बैंगलोर में यहाँ पे एयर शो हो रहा है। एयर शो अभी February 13 to 17 में होगा। अब आप में से जो बैंगलोर में है इस शो को जरूर विजिट करिए, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी वहां पे। एयर शो है, दिस इज February 13 to 17। देन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रीलोकेट पीपल रीसेटल्ड इन एलिफेंट कॉरिडोर्स इन इदुक्की में एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं। एलिफेंट कॉरिडोर्स मतलब एक्सक्लूसिव राइट्स टू एनिमल्स, और वहां पे जो ह्यूमन सेटलमेंट है उसको हम रीलोकेट करेंगे। हमारा पर्पस है एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को कम करना। बीचेस इन विशाखापट्टनम आर नाउ हेडिंग टुवर्ड अ डिजास्टर से एक्सपर्ट्स। अब देखो बीचेस कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। यहाँ पर रेगिस्तान रेत होती है, डेजर्टिक टाइप। यहाँ पर जैसे रेत होती है, जैसा हम डेजर्ट थार डेजर्ट में देखने को मिलता है, वैसा यहाँ पे सैंड होती है। सैंड डेजर्ट का कंडीशन ये होता है कि वहाँ पे एरिडिटी है और दैट इज वाई वहाँ पे रेत बन जाती है। बट द पॉइंट इज यहाँ पर दिस सी है, ओशन वेव्स है, एंड बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट कोलिजन ऑफ द ओशन वेव विद दिस बीच बाउंड्री, ये ऐसे यहाँ पे फाइन सैंड के पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहाँ पे सैंड माइनिंग भी एक प्रॉब्लम है, प्लस जो कांस्टेंट इरोजन हो रहा है कोस्टल एरिया में, तो उससे बीचेस आर डाइंग और दिस इज लाइक इम्पेंडिंग डिजास्टर। तो यहाँ पे बात है 28.18 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन इन विशाखापट्टनम में इरोजन हो रहा है। इरोजन ऑफ बीचेस इन विशाखापट्टनम इज नॉट न्यू, 1930 से ऐसा हो रहा है। 2 ships were sunk near the Dolphin Nose to create a breakwater to stop the process of sedimentation at the mouth of Visakhapatnam Harbor. ये विशाखापट्टनम हार्बर भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिकली। सो द पॉइंट इज ये जो डॉल्फिन नोज है, यह हमने पहले भी कोशिश किया था कि जो लहरें आ रही है उसको थोड़ा स्टॉप करे सो दैट इरोजन कम हो। इरोजन ऑल द वे एनकरेज होता जा रहा है, दिस इंक्रीज होता जा रहा है। बीचेस जो होते हैं ये डायनामिक लैंडफॉर्म होते हैं, should be treated as part of the sea and not part of the land. See, beaches part of the sea है, जमीन का पार्ट नहीं है। Erosion and deposition of sand are primarily due to high wave action. जो लहरें आ रही है say because of say wind or this gravity. So ये जो waves आ रही हैं, high wave energy जब जमीन से कोलाइड होगा और फिर वहां पर wave action से बीचेस बनेंगे। अब प्रॉब्लम होती है जब ह्यूमन इंटरैक्शन यहाँ पे होने लग जाता है। बीचेस एक कुशन है बिटवीन हाई वेव एक्शन ऑफ द सी एंड लैंड मास। कॉन्टिन्यूस नरिशमेंट ऑफ बीचेस इज अ मस्ट, अदरवाइज आपका जो लैंड मास है वो भी इरोडेड होने लग जाएगा। तो दैट इज वाई यहाँ सीवियर इरोजन को चेक करना जरूरी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेक वाटर्स लगा है साउथ साइड में, या फिर हम यहाँ पे बीचेस में कई बार जैसे मुंबई में आप देखो बहुत एम्बैंकमेंट्स भी बने हुए हैं, पत्थर रखे हुए हैं, ऐसे वो वेव को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो वी शुड डू समथिंग टू प्रोटेक्ट अवर बीचेस, और इसीलिए फिर एक ब्लू फ्लैग बीचेस का भी एक कॉन्सेप्ट आता है। DRDO asks industry to join 5th generation fighter development. अब सी ये जनरेशंस होती है, जैसे रफेल आया है, दिस कैन बी सेड 4.5 जनरेशन, 4th जनरेशन, ऐसी 5th जनरेशन। 5th जनरेशन में एवियोनिक्स बेटर होंगे, रडार बेटर होगा, उसका डिजाइन स्ट्रक्चर बेटर होगा, कॉम्बैट एबिलिटी बेटर होगी। सो DRDO asks industry to join 5th generation fighter development. 5th जनरेशन 25 टन का मल्टी रोल ट्विन इंजन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। सी दिस इज स्टेल्थ का मतलब क्या होता है, कैन यू आंसर? स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में ऐसी क्या खूबी होती है, व्हाट इज द खूबी ऑफ दिस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट? तो इस तरीके से डिजाइन हुआ है, टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टमेंट भी है। तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे दिस एविएशन दिस 5th जनरेशन डेवलप करने की बात कर रहा है। तो ये ट्विन इंजन होगा, लेट अस सी, अभी बहुत टाइम लगेगा इसमें, लेट अस सी। तो दिस इज देयर। और हमारा इंडिजिनस प्रोजेक्ट भी है, इंडिजिनस प्रोजेक्ट तेजस चल रहा है। तेजस का LCA Mark 2 भी आ गया है, विच इज लॉट हैवियर,
और कॉम्बैट रेडी भी होगा, कॉम्बैट में बेटर कैपेबिलिटीज भी होगा। लेट अस सी। तो आईएफ ने भी कमिटमेंट दिखाया है, एलसीए मार्क 2 का एक पूरा पूरा 6 स्क्वाड्रन होगा। लेट अस सी। तो ये डीआरडीओ ने शोकेस किया है 5th जनरेशन फाइटर एरो इंडिया। इसको जरूर विजिट करिए, अभी जो एरो शो भी हो रहा है बेंगलुरु में। जापानीज कंपनी टू डेवलप होटल इन यूपी सिटीज। वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस है फिजी में टू हाईलाइट लिंक्स विद पैसिफिक ओशियन रीजन। फिजी आइडेंटिफाई करिए, फिजी कहाँ पर है मैप। आप एक एटलस अपने पास रखिए, डेली जो भी न्यूज आ रहा है ना उस एटलस में उसको हाईलाइट करते जाइए। कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप स्टिकी नोट्स लगा के उस पर लिख लीजिए। डेली बेसिस में ये करिए, विद इन अ मंथ आप देखना आपका मैपिंग बहुत औसम तरीके से कवर हो जाएगा। ओके, सो डोंट वेट कि हम स्टैंड अलोन अलग से देखेंगे, साइमल्टेनियसली देखते जाओ, डेली की हैबिट बनाओ। आप गूगल अर्थ को भी इंस्टॉल कर सकते हो, वेरी गुड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। देन दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू विल हेल्प टू फाइट इनइक्वालिटी एंड women should be at center of all discourse G20। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, मुर्मू मैम का एक हमने स्पीच देखा था, उसमें बताया था अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो हैं, मतलब जिनको जेल में डाल दिया है बट उनका कोई चार्जशीट नहीं है, कुछ केस फाइल नहीं हुआ है, उनकी सुनवाई नहीं हुई है, उन पे डिसीजन नहीं आया है कि वो कॉन्विक्ट हैं या फिर उनको स्कॉट फ्री करें, वो अंडर ट्रायल होते हैं। तो ऐसी बहुत संख्या है अंडर ट्रायल की। अंडर ट्रायल को हमें कम करना है बिकॉज जेल्स आर ओवरटली क्राउडेड। फर्निश श्योरिटी एंड बेल बॉन्ड्स। Movement to get horizontal quota for trans people gain momentum. Court power to return of Jumbo and Biden democracy Americas में South and North and South America Brazilian president है Mr. Lula and Turkey में building collapse and scientists report finding a third natural source of quasi crystals। तो दिस इज क्वाजी क्रिस्टल्स, साइंटिस्ट ने अभी इसका एक और न्यू थर्ड नेचुरल रिसोर्स फाइंड कर लिया है, नेचुरल रिसोर्स ऑफ क्वाजी क्रिस्टल्स। इनको फाइंड करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो क्वाजी क्रिस्टल्स पहली बार लैब में 82 में आया था। क्वाजी क्रिस्टल को हम नेचर में ढूंढने की कोशिश कर रहे थे एंड देन हमें यहाँ पे मिला, मीटियोराइट कोलिजन एटसेट्रा, वी गॉट दिस। ओके, तो दिस इज न्यूज कि हमें क्वाजी क्रिस्टल का एक न्यू सोर्स मिल गया है। अब देखिए, drought may have led to collapse of this Hittite empire। सी, ये सेंट्रल एनाटोलिया है, एनाटोलिया मतलब मॉडर्न डे टर्की। यहाँ पे एक सिविलाइजेशन थी और दिस ड्रॉट के कारण ये एम्पायर जो था ये कोलैप्स हो गया। जितने भी अगर आप देखो इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है, उसका कोलैप्स इसलिए हुआ था बिकॉज ऑफ से नेचुरल डिजास्टर्स, शॉर्टेज ऑफ वाटर या फिर फ्लड्स। सो दैट इज वाई हमें कंजर्वेशन ऑफ नेचर बहुत जरूरी है। नियो डिटर्मिनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एक्सटेंसिव वेटलैंड लॉसेज हो रहा है 21% 1700 एंड 2020 में, विच इज नॉट अ गुड साइन बिकॉज ये जो वेटलैंड्स होती हैं ये शॉक एब्जॉर्बर होती हैं। वेटलैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सम फिश रिकॉग्नाइजेस देयर ओन फेसेस इन फोटोज एंड मिरर। तो मिरर में जैसे हम ह्यूमंस भी मिरर में हम खुद को देखते हैं तो हम लेस अलार्म्ड रहते हैं बिकॉज वी सी से अ फैमिलियर फेस। सो सिमिलरली फिशेस भी खुद को पहचान पाती है, मिरर में वो खुद को देखती हैं तो वो खुद को आइडेंटिफाई कर लेती है। ये बर्ड्स एंड विंग्स है। बर्ड्स अब क्या हुआ, पहले हम जैसे फिशेस थे, फिर इवोल्यूशनरी हमारी जर्नी डिफरेंट हुई, फिर उसी से एवियन हो गए। ये जो बर्ड्स हैं एवियन हो गए, इनकी बॉडी ऐसे इवॉल्व हो गई। सो यहाँ जो इनके विंग्स होते हैं, स्ट्रेंथ जैसे हमारे लिम्स हैं ऐसी विंग्स वी कैन से कि वो उस फॉर्म में विंग्स के फॉर्मेट में उनके इवोल्यूशन हो गया लिम्स का। तो स्ट्रेंथ ऑफ द कॉर्कॉइड बोन एंड द एनिमल्स बॉडी मास, ये लोकोमोशन के लिए जरूरी होता है, फ्लाइट तभी वो कर पाते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ विंग से एनिमल फ्लाई होता है और वो प्रोपेल करता है। इसके अलावा विंग्स से थर्मो रेगुलेशन होता है, इंट्रा स्पेसिफिक डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। इस तरीके से ये इवॉल्व हुआ है। ओके, तो दिस इज विंग, दीज आर विंग्स। अब ये बात है मैमेलियन स्प्रेड ऑफ H5N1 एंड इट्स पैंडेमिक पोटेंशियल। अब एक ये नया वायरस है H5N1 वायरस, और इसके लिए हम प्रिपेयर्ड है या नहीं है। जीनोमिक सर्विलेंस रिक्वायर्ड है आउटब्रेक को कंटेन करे। H5N1 जो होता है ये प्राइमरली होता है बर्ड फ्लू। तो H5N1 इमर्ज हुआ 2020 में और बर्ड फ्लू में ऐसे कुछ केसेस दिखे। अभी एक H5N1 का वेरिएंट मिल रहा है सील्स में, सी लायंस में, डॉल्फिन, लायन, ऑटर एंड फॉक्सेस में भी। एक्चुअली ये जो एनिमल्स भी होते हैं ना, दे आर लाइक रिजर्वॉयर ऑफ सो मेनी वायरसेस। और जब ये वायरसेस एनिमल टू ह्यूमन जंप करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं आंसर, इसको क्या बोलते हैं जब वो एनिमल टू ह्यूमन जंप करते हैं।
तो फिलहाल के लिए H5N1 कैन कॉज सीवियर इलनेस, डेथ इन ह्यूमन। इसका जो स्प्रेड है उसको चेक करना जरूरी है। देन यहाँ पे बात है मिलेट्स का। रेगुलर टॉक है, मिलेट्स हमारा सुपर फूड रहा है, ट्रेडिशनल फूड रहा है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आप देखो, जब हम डेक्कन में जाते हैं, यहाँ पे पानी का जिस एरिया में शॉर्टेज होता है वहाँ पे मिलेट्स ज्यादा बनाते हैं, वो मिलेट्स ज्यादा बनाते हैं, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, लाइक दैट। तो कुछ होते हैं जैसे माइनर मिलेट्स, फॉक्सटेल मिलेट्स होते हैं, इसको हमने डिटेल में और भी कई बार देखा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलेट्स। एंड ये मिलेट्स जो होते हैं इससे हम ब्रेड, बिस्कुट्स और बहुत सारी चीजें यहाँ पे बनानी चाहिए। मिलेट्स की अच्छी बात है, ये बहुत ज्यादा वाटर एफिशिएंट होते हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट होते हैं, इनको वार्मर ड्रायर एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से आप लगा सकते हो। और इसका ओरिजिन से एशिया, पीपल ऑफ एशिया एंड अफ्रीका 10,000 साल से इसको यूज कर रहे हैं। तो द पॉइंट इज कि हम मिलेट्स को ग्रो कर रहे हैं, फुल थ्रॉटल आगे बढ़ा रहे हैं, मिलेट्स से रिलेटेड जो फूड आइटम्स हैं उनको भी एनकरेज कर रहे हैं। दे आर हाईली न्यूट्रिशियस, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, विटामिन बी, मेटल आयन सब मिलता है इसमें। मिलेट्स को सुपर फूड बोला जाता है। सो वी आर डेवलपिंग दिस, एनकरेजिंग दिस कल्चर, इसमें मिलेट्स हम ज्यादा से ज्यादा खाएं। अब यहाँ पे बात है व्हाट मेड MSCI एक्ट ऑन अदानी स्टॉक्स। MSCI क्या है? मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल है। मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल ये ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर है, फाइनेंशियल मार्केट्स में अपनी रिपोर्ट्स देता है। अब इसने ये बताया अदानी के केस में फ्री फ्लोट एक वर्ड यूज हुआ है, हम उस वर्ड पे ज्यादा फोकस करते हैं कि व्हाट इज फ्री फ्लोट, ये हमारे सिलेबस इकोनॉमी का है। तो फ्री फ्लोट refers to the proportion of the total outstanding shares of a publicly listed company that is readily available for trading in the market। जैसे एक कंपनी थी, वो प्राइवेट लिमिटेड थी, सपोज उस कंपनी को और एक्सपैंड करना हुआ और पैसे की जरूरत पड़ी, तो उसने कहा हम लिस्टेड कंपनी बनेंगे स्टॉक मार्केट में, लिस्टेड। तो वो अपना शेयर्स लेके आती है, शेयर्स पहली बार लाती है, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर आता है, IPO आता है। अब कुछ जो शेयर्स होते हैं वो से सम वहां पे इन्वेस्टर्स और उसकी गारंटी है, और एक सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं जो पब्लिक के लिए ओपन होते हैं। तो अगर ये जो पब्लिक के लिए ओपन शेयर्स हैं उनका कितना प्रोपोर्शन है, उनमें कितनी अवेलेबिलिटी है, वो बताता है कि उस कंपनी के पास कितनी लिक्विडिटी अभी मेंटेन है। तो फ्री फ्लोट का मतलब है क्या प्रपोर्शन, व्हाट प्रपोर्शन ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ अ पब्लिकली लिस्टेड कंपनी दैट इज रेडीली अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग इन द मार्केट। तो 100 शेयर्स निकाले थे, 1000 शेयर्स निकाले थे, उसमें से 750 शेयर फ्रीली अवेलेबल है मार्केट में फॉर ट्रेडिंग, तो ये हो गया उसका फ्री फ्लोट। तो जनरली शेयर्स हेल्ड बाय प्रमोटर्स एंड लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर नॉर्मली नॉट फ्रीली ट्रेडेड इन द मार्केट। तो जैसे IPO भी आया था और कुछ जो शेयर्स हैं वो इन्वेस्टर्स ने रखे हैं या प्रमोटर्स ने रखे हैं या लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने रखे हैं, तो वो यूजुअली ट्रेड के लिए मार्केट में अवेलेबल नहीं होते। पर अगर बहुत ज्यादा शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हो रहे हैं तो वो फ्री फ्लोट की कंडीशन आ जाएगी। तो फ्री फ्लोट मतलब कितने प्रपोर्शन ऑफ शेयर्स कंपनी के मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है। तो ये बताते हैं, इन्वेस्टर एक आइडिया देता है कि कंपनी में कितनी लिक्विडिटी है कंपनी के पास, कितने शेयर्स उसके पब्लिक मार्केट में है। It should be noted that weightage given to companies' stock in certain indices is based on market capitalization। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं, जैसे पर्टिकुलर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन दिस नंबर है, उसका क्या मतलब है? कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन इज कैलकुलेटेड ऑन द फ्री फ्लोट ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी ने कितने शेयर्स निकाले और उसमें से कितने शेयर्स मार्केट में फ्री फ्लोट पे हैं, ट्रेडिंग हो रही है उनकी, वो बताता है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी स्टॉक, अगर ड्रॉप हुआ नंबर ऑफ फ्रीली फ्लोटिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी में, तो ये एक इंडिकेटर होगा कि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हुआ है और उसका इंडाइसेस का जो वेट है वो कम हुआ है। तो ये वर्ड होता है फ्री फ्लोट, हमें बस यही जानना है। मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर है और इसने कमेंट दिया है फ्री फ्लोट ऑफ अदानी जिस इंडस्ट्री के शेयर्स में। ओके, अब हम पढ़ते हैं अर्थक्वेक। सी व्हाई वर द टर्की अर्थक्वेक सो डेडली। अब देखो इसमें बहुत अच्छे से सारी चीजें कवर कर लिए। सो दैट इज व्हाई फ्लो विद दिस न्यूज़पेपर, डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर कवर करना है। वी नेवर मिस स्किप एनी न्यूज़पेपर। आप देखना आपका कुछ भी स्किप नहीं होगा, सब चीज कवर हो जाएगी और टाइम भी बचेगा। उस टाइम पे आप पॉलिटी पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, टेस्ट सीरीज करो, CSET लगाओ, सो मेनी थिंग्स यू हैव टू डू। आप एक
करंट अफेयर्स के लिए अपना पूरा टाइम एनर्जी लगाते हैं, ये अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होती है। अब सी, ये टर्की है, टर्की के यहाँ पे जॉर्जिया है, दिस इज ईरान, इराक, सीरिया, सिप्रस, इस्तांबुल, ये इसका कैपिटल हो गया। ओके, तो टर्की के ऊपर है ब्लैक सी और नीचे है मेडिटेरेनियन सी। अब एक ये फॉल्ट चल रहा है जिसको नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट बोलते हैं, ये एक फॉल्ट चल रहा है अर्थ एनाटोलियन, ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट है, और यहाँ पर 6 फरवरी को अर्थक्वेक आया। ये एक अरेबियन प्लेट है जो ऊपर हिट कर रही है, एनाटोलियन प्लेट लेफ्ट जा रही है, यहाँ एशियन और अफ्रीकन प्लेट है। सो यहाँ प्लेट टेक्टोनिक्स एक्टिव है, प्लेट टेक्टोनिक्स एक्टिव है मतलब यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी और भूकंप आएंगे। तो एक रप्चर हुआ मल्टीपल टेक्टोनिक प्लेट्स में और उससे वाइड स्प्रेड डेवास्टेशन हुआ। ये एक स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट था। क्या अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स जैसे चिली और जापान में भी बहुत अर्थक्वेक आता है? तो हैज इंडिया एवर एक्सपीरियंस्ड एन अर्थक्वेक ऑफ सच मैग्नीट्यूड? लेट अस फाइंड। तो 2 लार्ज अर्थक्वेक आए, 7.8 का और 7.5 का टर्की में, और इसमें बहुत लाइफ लॉस हुआ है। इंडिया ने क्विकली यहाँ पर रिलीफ मटेरियल एंड फोर्स हमारी सेंड की है, हेल्प, ऑल द हेल्प वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड। अब सी, अर्थक्वेक क्यों हुआ? अर्थ का जो क्रस्ट है ये ऊपर का एक थिन लेयर होता है। ये जो अर्थ की जो ऊपर की क्रस्ट है इसमें बहुत सारे टुकड़े हैं, 15 मैसिव सेगमेंटेड चंकी स्लैब्स हैं जिनको टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है ना, मेजर और माइनर प्लेट, और ये कॉन्स्टेंटली इन मोशन है, एस्थेनोस्फेयर, अर्थ, कन्वेक्शन, करंट, लेयर एटसेट्रा। सो दिस लैंड ऑन विच बिल्डिंग आर बिल्ट रेस्ट ऑन दीज प्लेट्स। अब हम एक प्लेट है, प्लेट के ऊपर हमने मकान बना लिया। अब ये प्लेट अगर हिलेगी, टूटेगी, तो जो अर्थक्वेक आएगा, जैसे अर्थक्वेक स्टार्ट होता है तो से बॉडी वेव आती है, फिर सरफेस वेव आती है, उसमें रेले और लव वेव आती है, ये बहुत डेंजरस होती है। इनका जो मोशन होता है दे आर वेरी वेरी लाइक डैमेज कॉजिंग होती है। ये प्लेट्स कॉन्टिन्यूसली कोलाइड, पुश एंड ग्रेट अगेंस्ट ईच अदर मीटिंग पॉइंट पे, और अर्थक्वेक यहाँ पर आता है। अब सी, the pent-up energy from the nestling plates along fault lines is often released when an imbalance in pressure causes rocks on either side of the fault to readjust. अब एनर्जी स्टोर हो गई है, एनर्जी सडनली रिलीज होगा तो उससे मूवमेंट होगा। रॉक्स राइजिंग अप रिलेटिव टू अनदर इज कॉल्ड नॉर्मल फॉल्ट। अगर रॉक्स है वो रिलेटिवली ऊपर फॉल्ट ऊपर गया है, नॉर्मल फॉल्ट है। अगर वो स्लाइड डाउन हो रहा है तो उसको बोलते हैं रिवर्स फॉल्ट, और दोनों एक दूसरे से साइड पास हो रहा है तो उसको बोलते हैं स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। तो 3 टाइप की फॉल्ट है, नॉर्मल फॉल्ट जिसमें रॉक्स रिलेटिव टू द अदर अप हो रहा है, राइज हो रहा है। सेकेंड है रिवर्स जिसमें डाउन हो रहा है, और स्ट्राइक स्लिप में साइड पास हो रहा है। अब जब भी ऐसा मूवमेंट हो रहा है तो उससे एनर्जी रिलीज होगी। टर्की में अर्थक्वेक आता है, अरेबियन प्लेट है, एनाटोलियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, और ये बहुत एक्सट्रीमली सेस्मिक एक्टिव जोन है। अरेबियन प्लेट नॉर्थ जा रही है यूरोप में, एनाटोलियन प्लेट जिसपे टर्की है ये वेस्ट जा रही है। बल्क ऑफ टर्की एनाटोलियन प्लेट पे है बिटवीन 2 मेजर फॉल्ट्स, नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट एंड ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट में, और यहाँ पर अर्थक्वेक आया। कहा जा रहा है ये स्ट्राइक स्लिप है, स्ट्राइक स्लिप है, स्ट्राइक स्लिप यहाँ पर आया। अब लेट अस सी, अब एनर्जी रिलीज होती है, इसको हमने रिक्टर स्केल में माना, ये 10 का लेवल चलता है, दिस इज लॉगरिथमिक। तो 7.82 अगर 8.8 हो रहा है मतलब से 10 टाइम्स 100 टाइम्स एनर्जी इंक्रीज हो गई, दिस इज लॉगरिथमिक। सो एज दिस रीजन होस्ट मेनी फॉल्ट सिस्टम, देयर आर मेनी अर्थक्वेक बीइंग रिकॉर्डेड इन द रीजन। अब एनर्जी रिलीज होती है, सेस्मोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सेस्मोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो उसको कैप्चर करते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड आया था 7.8 का, 7.8। एक मरकाली स्केल भी होती है जो इंटेंसिटी मेजर करती है। ये फॉल्ट 190 किलोमीटर की है और यहाँ पे अर्थक्वेक आया। सेकंड 7.5 मैग्नीट्यूड का आया, ये भी यहाँ पर आया एडजेसेंट फॉल्ट में, और इससे भी डिजास्टर यहाँ पे देखने को मिला। तो आर देयर एनी सिमिलैरिटी टू अर्थक्वेक इन इंडिया? अब इंडिया में भी जोन 5 भी है, अर्थक्वेक के हमने जोन्स बना रखे हैं। जो हिमालयन रीजन है और कुछ भुज और कच्छ का रीजन है ये जोन 5 में आता है, नॉर्थ ईस्ट में भी। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है अर्थक्वेक आने की, बट अर्थक्वेक का ऐसा है कि वी कैन नॉट प्रेडिक्ट विद एक्यूरेसी कि वो अर्थक्वेक कब आएगा। तो जैसे जोन 5 है, गढ़वाल कुमाऊं रीजन पे भी अर्थक्वेक का टेंडेंसी है, यहाँ पर अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी है, और द अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी लेट अस सी, बट वी कैन नॉट एक्यूरेटली टेल कि अर्थक्वेक कब आएगा। सो दैट इज व्हाई व्हाट वी ट्राई टू डू, हम यहाँ पर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस करते हैं। हमारी जो बिल्डिंग्स हो वो अर्थक्वेक प्रोन हो, उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो इन सच अ वे हो कि अर्थ अगर शेक हो तो वो बिल्डिंग कोलैप्स नहीं हो, क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो है उसमें बेहतर हो, बिकॉज
जो टर्की में डैमेज हुआ उसका वन मेजर रीजन ये भी बताया जा रहा है करप्शन। बिल्डिंग जो बनाई है उसमें सीमेंट तो है ही नहीं, रेत की बिल्डिंग है वो सारी, तो ढह गई वो। तो द पॉइंट इज इंडिया में भी ऐसे अर्थक्वेक पहले आए हैं, बट वी नीड टू लर्न फ्रॉम जापान। ऐसा कोई भी डिजास्टर नहीं है जो जापान में नहीं होता, बट लुक एट जापान, जापान की इकोनॉमी, जापान का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, सो दैट इज व्हाई वी नीड टू लर्न फ्रॉम जापान। डिजास्टर प्रूफ बनने की जरूरत है। 1993 में लातूर का अर्थक्वेक भी आया था, 6 मैग्नीट्यूड का था, बट इसमें बहुत डैमेज हमें मिला था बिकॉज बिल्डिंग कोड्स यहाँ पे एनफोर्सेबल नहीं थे। सो वी नीड टू प्रिपेयर अवर सेल्फ। अब सी कितना बढ़िया से ये पूरा टॉपिक तैयार हो गया। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ न्यूज़पेपर एंड दिस इज हाउ वी शुड रीड न्यूज़पेपर। गवर्नमेंट रैंपिंग अप बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सारे जो बॉर्डर स्टेट्स हैं वहां पे हम इंफ्रा अपग्रेड कर रहे हैं। प्राइमरी रीजन इज चाइना। तो 3488 किलोमीटर एलएसी है चाइना की। लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, इसको हम बॉर्डर बढ़ा रहे हैं, बॉर्डर इंफ्रा बेटर कर रहे हैं। तो जयशंकर साहब ने भी कहा नॉर्थ बॉर्डर्स हमारा टारगेट एरिया है। डोकलाम के बाद जो हमने देखा स्टैंड ऑफ, हमें बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है। तो ये ब्रीफिंग हुआ। और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इंक्लूड है? रोड्स है, ब्रिजेस है, टनल्स है, क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी विद नेबरिंग कंट्रीज, हाईवेज, ब्रिजेस, इनलैंड वाटरवेज, रेल रोड, इलेक्ट्रिसिटी, पाइपलाइंस, मॉडर्नाइज कंस्ट्रक्ट करें चेक पोस्ट को, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को, एंड ट्रेड, फंडिंग, इंफ्रा प्रोजेक्ट। और वहां के जो लोग भी हैं, बिकॉज बॉर्डर एरिया में जो पॉपुलेशन है दैट दिस इज ऑन डिक्लाइन, सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल। तो ये नेबरहुड प्रोजेक्ट है हमारा, जिसमें हम नेपाल, बांग्लादेश के साथ जैसे हम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बढ़ा रहे हैं। एक महाकली मोटरेबल ब्रिज है, मैत्री सेतु है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच, कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट है से आपका दिस वाटरवे सितवे पोर्ट मिजोरम से हम म्यांमार। तो द पॉइंट इज कि ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना इज अ गुड थिंग। मोतिहारी अमेलिखगंज नेपाल में है, हाई स्पीड डीजल पाइपलाइन बना रहे हैं हम यहाँ पे। भूटानीज ड्राई पोर्ट है पसाका बॉर्डर वेस्ट बंगाल में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोटेड डाउन, मैंने इसको सारा नोट्स में लगा दिया है। अब द पॉइंट इज कि ये रिपोर्ट अभी आई है और चाइना के साथ टेंशंस भी हैं। सो क्लियरली वी आर ट्राइंग टू लाइक इंप्रूव अवर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। सो लेट अस सी। बाकी हम रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, फ्रेंडली टाइज है, लेट अस सी। अभी G20 की मीटिंग भी होगा, G20 की मीटिंग भी होगा और उसमें चाइनीज प्रीमियर मोस्ट प्रोबेबली इंडिया आने चाहिए। ये अटल टनल है रोहतांग पास में, अटल टनल रोहतांग पास में। टाइकून एंड एनिग्मेटिक चैट जीपीटी राइवल गूगल बार्ड आ रहा है अभी। रजिस्ट्री टाइट लिक्विडिटी से भी। और ये हो गया द हिंदू न्यूज़पेपर। फायर ऑन आइस, ISU यूरोपियन स्केटिंग चैंपियनशिप है, फिनलैंड एंड दिस US। अब हम आते हैं आज के न्यूज़पेपर में। आज का न्यूज़पेपर में पहला न्यूज़ है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज अमंग 6 न्यू गवर्नर्स अपॉइंटेड। तो ये नाम है, ये नए जजेस अभी अपॉइंट किए गए हैं। जस्टिस S अब्दुल नजीर, लेफ्टिनेंट जनरल पारानाइक एंड LP आचार्य, CP राधाकृष्णन जी, SP शुक्ला जी एंड GC कटारिया जी। सो ये नए गवर्नर अभी अपॉइंट हुए। तो गवर्नर का टर्म कितना होता है? जैसे कि हम देखते हैं CEC का से एक टर्म होता है और फिर से हम देखते हैं CIC का भी एक टर्म होता है। सो व्हाट इज लाइक टर्म ऑफ गवर्नर? गवर्नर की जो पोस्ट होती है इनका कितना होता है? जैसे चीफ मिनिस्टर अगर आते हैं तो से 5 इयर्स का विधानसभा का होता है, लोकसभा 5 साल होता है, लाइक दैट। तो कितने साल का होता है गवर्नर का? और गवर्नर को अगर हटाना है तो क्या स्पेशल मोशन लाना पड़ेगा? स्पेशल मेजोरिटी से हटेगा या नॉर्मल मेजोरिटी से हटेगा? दिस फ्रॉम पार्लियामेंट। 4G name only data needles stutter in gray spot in India। तो 4G है बट स्पीड इज वेरी लेस। सीकिंग वार्मथ, ये है टेकिंग अ ब्रेक। रेस्क्यूअर, ऑन फायर हो रहा है यहाँ पर। ये सर्वाइवर है, रबल ऑफ फ्रीजिंग वेदर में दे गॉट स्टक। और अभी नॉर्थ सीरिया लास्ट वीक। सो अगेन जो डिजास्टर है अर्थक्वेक का, ये बहुत डेडली हो रहा है। देन महर्षि दयानंद जी रिमूव्ड एविल्स falsely attributed to religion। Then this is next news, next page। Off track, no city for those who cycle to and for work। एक्चुअली ये जो साइकिलिंग होती है ना, दिस इज रियली गुड फॉर लाइक हेल्थ पर्पस, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसकी डेडिकेटेड लेन होनी चाहिए, लेन होनी चाहिए जहाँ पे आप साइकिलिंग करो। अदरवाइज हमारे यहाँ लेन नहीं होती, साइकिलिस्ट होता है उसको एट टाइम्स ट्रैफिक में इतना ड्यू रिकॉग्निशन रेस्पेक्ट नहीं मिलता, तो एक्सीडेंट्स भी होते हैं हमारे यहाँ। सो नो सिटी फॉर दोज साइकिल टू एंड फ्रो फॉर वर्क। Then this is next news, or this is
व्हाइट फेब्रुअरी तो वर्कर्स क्लियर स्नो फ्रॉम द रूफ ऑफ अ हाउस इन गुलमर्ग, ये स्की रिजॉर्ट है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। माइनर मिनरल सेक्टर इन ओडिशा रिडल्ड विद इलीगैलिटीज। देखो मिनरल्स दो टाइप के होते हैं, एक मेजर मिनरल्स होते हैं, माइनर मिनरल्स होते हैं। ओडिशा मिनरल रिच स्टेट है, मिनरल रिच स्टेट है तो टेक्निकली इतने मिनरल्स होने के कारण ओडिशा का इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, पर है नहीं। क्यों? क्योंकि एट टाइम्स ये होता है कि यहाँ पर लाइक से स्मगलिंग या फिर जो पॉलिसी करेक्ट नहीं है, तो उसके कारण लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लॉसेस जैसे माइनर मिनरल्स हैं, स्मगलर है, सीजिंग, ये इतना किया तो उससे लॉसेस ज्यादा होते हैं। तो इस पे क्रैकडाउन भी करता है गवर्नमेंट। और ये जो स्टेट बॉर्डर आ जाती है वेस्ट बंगाल, यहाँ डिफिकल्टी आती है। तो द पॉइंट इज कि हमें अगर जो माइनर मिनरल्स हैं, फॉर एग्जांपल झारखंड भी इज अ लाइक मिनरल रिच स्टेट, तो द पॉइंट इज ये जो मिनरल रिजर्व्स हैं माइनर और इवन मेजर भी, जो स्टेट है स्टेट पे भी इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक बेनिफिट्स वहां पे पहुंचना चाहिए। दो मेजर रिवर्स है बालासोर में, सुबर्ण रेखा और बुरहा बालंगा, सुबर्ण रेखा और बूढ़ा बालंगा, ये दो रिवर है। और यहाँ पे ये रिवर बेड पे जिस तरीके से माइनिंग हो रहा है वो भी लाइक इट इज वेरी डिस्टर्बिंग टू एनवायरनमेंट एज वेल। एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस नहीं है, ऑपरेशन कंडीशन उनको फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो इससे डिफिकल्टी आती है। मशीन्स रिवर बेड को डैमेज करती है और इससे रिवर इकोसिस्टम डैमेज होता है। देन एजुकेशन में कॉशियस अप्रोच है और ये है फर्स्ट एडिटोरियल, नॉट लूजिंग स्टीम। अगेन रेगुलर टॉक है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके पुश को आगे बढ़ाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट। तो द पुश फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी अ बिग फिलिप टू कंस्ट्रक्शन गुड्स। इंडस्ट्रियल आउटपुट एस्टिमेट एनएसओ ने बताया कि मोमेंटम थोड़ा कम नजर आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश करने की जरूरत है। आईआईपी बताता है माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी लार्जेस्ट सेक्टर मैन्युफैक्चरर है, 78% ये यहाँ पे ला रहा है। द होल आइडिया इज, लेट अस नॉट गो इनटू नंबर्स, द होल आइडिया इज कि इंफ्रास्ट्रक्चर में और हम आगे हेडरूम है, वी कैन स्पेंड मोर। तीन ब्रॉड कैटेगरी है ट्रेंड है इकोनॉमी में। पहला प्राइवेट कंजम्पशन, ये बहुत जरूरी है। प्राइवेट कंजम्पशन इज स्टिल टू रीगेन एन एंड्यूरिंग फुटिंग, नॉटविथस्टैंडिंग अ पोस्ट पैंडेमिक सर्ज इन पेंट अप स्पेंडिंग मोर विजिबल इन द सर्विस सेक्टर। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है बट प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, कॉज ऑफ वरी। और अगर हो भी रहा है तो सर्विस में ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग में कम है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो हैं इसकी डिमांड भी कम हो गई है, प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल भी कम हुआ है। देन फेस्टिवल डिमांड, पेंट अप डिमांड क्या होता है, बहुत टाइम से आपने होल्ड करके रखा है, फिर कोई सेल्स आएगा तो आप ऑब्जेक्ट खरीदते हो, तो दैट इज पेंट अप डिमांड। इसके अलावा यहाँ पे डेसिलरेशन भी देखने को मिला है ग्रोथ बैंकिंग में, तो दैट इज वाई मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशली दिस डेटा, आईआईपी का डेटा नॉट दैट गुड। तो द पॉइंट इज इसको ठीक करने की जरूरत है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी जरूरत है। यूनियन बजट ने जो प्लान्स यहाँ पे बताए हैं ये एक बिग फिलिप होगा, पुश करेगा कंस्ट्रक्शन गुड्स को। साइक्लिकल ट्रबल्स है, अब पाकिस्तान डे वन से अंडर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमेटिक स्टेट है, फेल्ड स्टेट बोला जाता है इसे, साइक्लिकल ट्रबल्स। द प्रॉब्लम इज पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट और यहाँ पे अगर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट फेल होती है तो disturbed failed Pakistan is even a bigger threat to the country, to the world. So that is why world यहाँ पे इसको रेस्क्यू करने की हमेशा कोशिश करता है। बट अब IMF भी थोड़ा पीछे हट गया बिकॉज फंडामेंटल रिफॉर्म्स जरूरी है जो यहाँ पे उसको प्रॉमिसिंग नहीं दिखे। लेट अस सी। द स्पिरिट ऑफ द लॉ लाइज इन द डिसेंटिंग जजमेंट। अब इसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे पॉलिटिकल एस्पेक्ट में। द पॉइंट इज कि जैसे अभी जजेस को अपॉइंट करना है और जजेस का अगर कोई पर्सनल बायस है, इसको आगे एक और आर्टिकल में देखते हैं। फॉर एग्जांपल दे सेड समथिंग ऑन रिलीजन और सम से थिंग्स व्हिच इज नॉट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या ऐसे में जजेस को फिर हमें जज बनाना, सुप्रीम कोर्ट जज बनाना एक राइट मूव होगा या नहीं होगा? जैसे कई बार जैसे आप सिविल सर्वेंट भी बनोगे, एज अ सिविल सर्वेंट पता है आपको बहुत ज्यादा दिस सोशल मीडिया या फिर पब्लिसिटी या फिर आप अपनी गवर्नमेंट पोस्ट को यूज कर रहे हो टू गेन सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी, ये चीज पसंद नहीं की जाती और ये टेक्निकली इसमें चैलेंजेस भी है। सो द पॉइंट इज कि जैसे जजेस है, जजेस को अक्सर ये माना जाता है वो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं, से बहुत ज्यादा सोशल नहीं होते। व्हाई? बिकॉज अगर वो बहुत ज्यादा सोशल होंगे देन अगर उनको कोई केस आ गया उनके पास तो वो फिर उसमें फ्री एंड फेयर जजमेंट नहीं दे पाएंगे।
उसमें उनके पर्सनल बायस आ जाएंगे, पर्सनल बायसेस आ जाएंगे बहुत ज्यादा. सो दैट इज वाई अक्सर गवर्नमेंट सर्वेंट्स में भी इट इज एक्सपेक्टेड कि दे स्टे लो प्रोफाइल. दैट इज वाई इसको बोला जाता है स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया. अब स्टील फ्रेम जो मकान में बनता है तो स्टील फ्रेम दिखता थोड़ी है, इट इज जस्ट देयर, इट इज जस्ट देयर, इट इज नॉट मेंट टू कम इन फ्रंट. सो दैट इज वाई जजेस में भी एनोनिमिटी और जस्ट डू योर ड्यूटी, लो प्रोफाइल, साइलेंटली डू योर ड्यूटी, सच थिंग्स आर एनकरेज्ड बिकॉज ये ड्यूटी डिलीवरी में हेल्प करता है, उन्हें करेक्ट जजमेंट देने में हेल्प करता है. कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, तो बात है कि जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है, अब इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम है, बट रिलीजियस फ्रीडम का ये मतलब नहीं है कि पब्लिक ऑर्डर कॉम्प्रोमाइज हो जाए, मोरालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाए. तो अक्सर क्लैश हो जाता है. एक जगह बात आती है रिलीजियस प्रैक्टिसेस की, दूसरी जगह आती है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक वैल्यूज, जैसे इक्वालिटी हुआ, राइट टू लाइफ हुआ, एटसेट्रा. इसमें हम किस तरीके से कल्चरल डिसेंट को आगे देखें. इंडिया यूएस स्पेस कोऑपरेशन फ्रॉम हैंडशेक टू हग, प्राइमरली यहाँ पे स्पेस की ही बात किया है. यूएस का स्पेस सेक्टर बहुत इवॉल्व है, नासा है और प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, स्पेस एक्स हो गया, ब्लू ओरिजिन हो गया, लाइक दैट. इंडिया में भी सेम टाइप ऑफ कल्चर इंक्रीज करने की बात है. तो अभी मीटिंग हुआ, इनिशिएटिव है, टेक्निकली हम लाइक इंफॉर्मेशन और दिस कोलैबोरेशन एटसेट्रा करें. जैसे हमारा अभी गगनयान 2024 का मिशन है, हम स्पेस में ह्यूमंस को सेंड करने का प्लान कर रहे हैं स्पेसक्राफ्ट में. देन द पॉइंट इज एट टाइम्स मिसमैच भी हो जाता है. नासा की प्रायोरिटीज अलग है, यूएस स्पेस की, इंडियन प्रायोरिटीज राइट नाउ डिफरेंट है, प्लस बजट भी दोनों का बहुत डिफरेंट होता है. हमारे पास इतना पैसा होता नहीं है तो हमें कम पैसों में किसी तरह काम चलाना पड़ता है. सो द पॉइंट इज अ मिसमैच इन इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज होता है. तो हमें जैसे यूएस एंड पार्टनर स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग कैपेबिलिटी इन लो अर्थ ऑर्बिट, और देयर एम्बिशंस आर फर्मली सेट ऑन द मून. मून एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया रहने वाला है. मून आगे चल के ना काइंड ऑफ लाइक स्प्रिंग बोर्ड की तरह काम करेगा, जिससे हम मून में जाएंगे और मून से फर्दर डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन करेंगे. देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि हम परहैप्स अपने लाइफ टाइम पे ही इंटरप्लैनेटरी बन जाए ह्यूमन स्पीशीज. जैसे आर्टेमिस प्रोग्राम है मून के लिए, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर यहाँ पे टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजी की बात किया, एम्बिशियस प्लान्स है. इसरो करंटली अंडरटेक्स फ्यूअर देन 10 लॉन्चेस ईच ईयर, ये हम और बढ़ा सकते हैं. टॉप प्रायोरिटी है हमारी सैटेलाइट्स हमें पहुंचाना है और कैचअप भी करना है से चाइना के साथ. यूएस का हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड सैटेलाइट्स है, लॉन्च व्हीकल्स भी यूएस का काफी लाइक वेल एस्टैब्लिश्ड है. अमेरिकन प्राइवेट सेक्टर भी वेल एस्टैब्लिश है. इंडियन गवर्नमेंट की अब जो पॉलिसी आ रही है तो हम प्राइवेट सेक्टर को भी आगे बढ़ा रहे हैं. द बेस्ट थिंग जो अभी हो सकती है वो ये हो सकता है कि हम जो कॉमन चीजें हैं वहाँ कोलैबोरेट करें. जैसे एक नासा और इसरो का एक सिंथेटिक अपर्चर रेडार निसार मिशन था, नासा इसरो, सच टाइप ऑफ कोलैबोरेशन हम करें. तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज हैं, और हम यहाँ पे कोऑपरेशन देखें. Then this is opinion. Service firms on recovery path. Manufacturing still a concern. Manufacturing अभी भी सही नहीं आ रही है. और all smart cities mission ready हो जाएंगे अगले महीने तक. 1 lakh villages have achieved ODF plus, Open Defecation Free plus. यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स ने बताया ODF प्लस हो गए हैं. भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 में ये बताया. एक्सेलेंट न्यूज. ऑल स्मार्ट सिटीज मिशन भी आएगा. 90,000 पीपल दिस इंजर्ड हुए. इंडियन आर्मी भी कैपिटल प्रोक्योरमेंट कर रही है. इतने चिल्ड्रन लिव ऑन द स्ट्रीट विद देयर फैमिलीज. देन जस्टिस एंड दिस इज, अब ये आता है माइक्रो एलईडी. माइक्रो एलईडी क्या होता है? जैसे हम स्क्रीन देख रहे हैं, ये जो स्क्रीन देख रहे हैं जिसपे आप मोबाइल में देख रहे हो, अब पॉसिबली ये एक आईपीएस पैनल भी हो सकता है, ये एक ओलेड पैनल भी हो सकता है. अभी एक नया पैनल आ रहा है माइक्रो एलईडी, टीएफटी एलसीडी, और इसी का एक वर्जन होता है आईपीएस. उसमें क्या होता है कि हम इंडिविजुअल डिम करते हैं, ब्राइट करते हैं, ऑफ ऑन करते हैं पिक्सल्स को. तो ये होता है टीएफटी एलसीडी. ये एक लिक्विड क्रिस्टल लेयर होती है और इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, कलर फिल्टर्स भी होते हैं, बैकलाइट्स भी होती है. मतलब इसमें ऐसा होता है ना, पूरा जो स्क्रीन है टीएफटी एलसीडी आईपीएस में, पूरे स्क्रीन को लिट करना पड़ता है हमें. फिर हम इंडिविजुअली पिक्सल्स को, उसमें कौन सा कलर दिखा रहा है एटसेट्रा, हम उसको कोड कर सकते हैं. तो ये काफी पॉपुलर है एलसीडी डिस्प्ले. पहले एक सीआरटी आता था, वो बहुत बड़ा सा मॉनिटर टीवी आता था, वो सीआरटी था. एलसीडी बहुत रिवोल्यूशनरी रहा. एलसीडी से जो विड्थ है वो कम हो गई, टीवी स्क्रीन पतले हो गए हमारे. फिर आती है ओलेड. ओलेड जो टेक्नोलॉजी होती है
ये ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड है। इसकी बेस्ट चीज क्या होती है कि हम इसमें इंडिविजुअली पूरे स्क्रीन को लिट करने की जरूरत नहीं है, इंडिविजुअली पिक्सल्स को लाइट ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, बेटर एफिशिएंसी आती है। बेटर एफिशिएंसी आती है। ओलेड के जो स्क्रीन होते हैं वो उससे फोल्डेबल भी होते हैं, ज्यादा आप उसमें इनोवेटिवनेस दिखा सकते हैं। दिस इज ओलेड। और अब आ रहा है माइक्रो एलईडी। माइक्रो एलईडी में एलईडी होगा बट वो मिनिएचर एलईडी होगा एंड दे विल बी सो स्मॉल कि इसमें आपको ना तो रिजोल्यूशन की चिंता करनी पड़ेगी, ना आपको एनर्जी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, कलर एक्यूरेसी ज्यादा होगी और ओवरऑल बेटर डिस्प्ले आपको दिखेगा। तो अभी जैसे एप्पल भी माइक्रो एलईडी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ये सेल्फ इम्यूनेटिंग डायोड्स होंगे that have brighter and better color reproduction than OLED, because OLED में ना बर्न आउट का भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है। बहुत टाइम तक OLED की जो डिवाइसेस होती हैं इनकी लाइफ थोड़ी कम रहती है। सो एप्पल अभी वर्क कर रहा है न्यू डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में और ये अभी आएगी। सो व्हाट इज माइक्रो एलईडी? तो बेसिस ऑफ माइक्रो एलईडी टेक्नोलॉजी है सेफायर शाइन ऑन इट्स ओन फॉरएवर। तो माइक्रो एलईडी स्क्रीन इज फिल्ड विद सच स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग लाइट। और माइक्रो एलईडी स्क्रीन इस तरीके से इंडिविजुअल लाइट एमिटिंग डायोड से बनता है, बट दिस इज स्मॉलर इन साइज, सो हम इसमें और बेटर इंडिविजुअली टारगेट कर सकते हैं पिक्सल्स को। तो सैमसंग पायोनियर है। सैमसंग इज लाइक अ सॉल्ट टू लाइक सॉफ्टवेयर कॉन्ग्लोमरेट है साउथ कोरिया का। जैसे हमारा टाटा है वैसा सैमसंग है, ये हर चीज में है। मोबाइल फोन्स भी बनाता है और ये दिस मोबाइल के स्क्रीन भी बनाते हैं। इवन एप्पल भी जो आउटसोर्स परचेज करता है वो सैमसंग से ही करता है। आईफोन्स वगैरह में भी जो स्क्रीन है वो सैमसंग का स्क्रीन है। सो द पॉइंट इज ये ओलेड में इसको काफी एफिशिएंसी है, एक्सपर्टीज है सैमसंग को। अब माइक्रो एलईडी में भी ये आगे आ रहा है। तो माइक्रो एलईडी से बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि इसमें स्केलेबिलिटी इजी होगी, रिजोल्यूशन फ्री होगा, बेजल फ्री होगा, रेशियो फ्री होगा, साइज फ्री भी होगा। रेड ग्रीन ब्लू कलर्स विदाउट नीडिंग द बैक लाइटिंग। तो जो आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले में बैक लाइटिंग चाहिए थी वो अब जरूरत नहीं पड़ेगी। विदाउट नीडिंग द सेम बैकलाइटिंग, कलर फिल्टर्स भी नहीं लगेंगे। तो थिनर और बेटर स्क्रीन हम बना सकते हैं। तो माइक्रो एलईडी अभी भी दूर है, 1 और 2 ईयर और लगेगा इसको आने में। लेट अस वेट एंड वॉच। सो दिस इज माइक्रो एलईडी। देन आई रेन इनटू योर नेबर, ही टुक मी फॉर अ ड्राइव इन हिज न्यू एसयूवी। और यहाँ पर लिखा हुआ इची फीट। इची फीट मतलब उसको बहुत जल्दबाजी हो रही है। जैसे स्टूडेंट्स में कोई नई किताब आपने खरीदी तो आपको लगता है ना इसको जल्दी से पढ़े, तो दैट इज कॉल्ड इची फीट। देन इनफॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, ये इनफॉर्मल एक्सप्रेशन होता है। दिस इज इची फीट। ओके। देन फीट वेट है मतलब डज इट मीन डूइंग समथिंग ग्रेजुअली? व्हेन यू आस्क समवन टू गेट देयर फीट वेट, what you are suggesting to the individual is that he should start slowly, step by step चलो। that is अगर आपको लॉन्ग जर्नी ट्रेवल करना है ऑलवेज स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। प्रिपरेशन में भी ऐसी सो मेनी न्यूबीज न्यू कमर्स आते हैं, वो पहले दिन ही मतलब बहुत हाई फाई चीज करना चाहते हैं। और पता है 99% ऑफ ऐसे स्टूडेंट्स आई हैव सीन, उनका ये जो जोश होता है ना 1 हफ्ते 2 हफ्ते मैक्सिमम 1 मंथ, इससे ज्यादा नहीं चलता है। और जो स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि पहले हम बेसिक्स करना है, न्यूज़पेपर करना है, एनसीईआरटी करना है, राइटिंग ठीक करना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है, दे ट्रेवल फार्दर और उनका सिलेक्शन भी हो जाता है। सो द पॉइंट इज स्टेप बाय स्टेप चलना जरूरी होता है। मैकाब्रे का मतलब होता है शॉकिंगली रेपेलेंट है, इंस्पायरिंग हॉरर, घैस्टली है, ग्रूजम है वो। इंडो यूएस अनमैन्ड एरियल व्हीकल टू बी फ्लाइट टेस्टेड दिस ईयर। एरो इंडिया फ्लाइज हाई विद 98 पार्टिसिपेटिंग नेशंस। पार्टिसिपेट बेंगलुरु में हो रहा है ये, डू विजिट। FATF की तैयारी चालू हो गई है। इंडिया मस्ट प्लान वीट एक्सपोर्ट, इस बार प्रोडक्शन अच्छा हुआ है। एंड देन दिस इज नेक्स्ट पेज। एटर्नल सिटी रिवर कम्स टू डाई अ स्लो डेथ अंडर पॉल्यूशन। आज टेलीग्राम पे मैंने एक वीडियो देखा है, हैव अ लुक, शेयर किया है, हैव अ लुक। ये MG नरेगा है, प्रिपेयर फॉर कंपनी कॉन्ग्लोमरेट। चाइना प्लानिंग कर रहा है अक्साई चिन रेलवे का, तिब्बत जिंजियांग। और यूएस में भी ऐसा, कनाडा में भी मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट दिखा, उसको शॉट डाउन कर दिया। टर्की एंड दिस इज स्पोर्ट्स। सो सी आज भी आंसर डिस्कशन नहीं करते हैं, ऑलरेडी 2 न्यूज़पेपर हो गया। हम इसको कल आंसर डिस्कशन वापस रिज्यूम कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।